ओके सो टॉकिंग अबाउट skeletal systems यहाँ so हमने शुरू किया था about the difference between movement, locomotion, right? उसके सारे types and then we came to the actual skeletal system in human beings and उसमें हमने start किया था discussing about the bones, right? So you know very well the bones are 206 in number in the adults and the entire bony skeleton is divided into two parts, that is axial skeleton and appendicular skeleton. तो previous session में हमने axial skeleton complete कर दिया था, right? So axial skeleton मतलब it is passing through the central axis of the body. So there is the cranium and the skull. up to the skull के बाद जो बीच में throat region में hyoid bone है, right? We have the ear ossicles. ये सब भी इंक्लूड हो गया cranium, skull, hyoid and ear ossicles के साथ, right? And then we had completed the entire discussion on vertebral column. Okay, so vertebral column में how many total vertebral bones are there in adults? एक पार्ट में नहीं, total number of vertebral bones. सारे बोन्स के नंबर्स वगैरह अच्छे से याद रखना है ना. हाँ. सो वर्टिब्रल बोन्स कितने होते हैं? 22. नहीं. In childhood it is 33. हाँ. And then there are two 28. vertebral. नहीं, 26. 26. हाँ. 33 and 26 याद रखना है. Because 5 bones of the sacrum they fuse to form one sacrum and 4 coccygeal bones will fuse to form one coccyx. इसलिए 33 becomes 26. ठीक है, ये रिवाइज करना है नंबर वगैरह सब, right? So the vertebral column from the neck region to the tail region. So neck vertebrae को cervical vertebrae बोलते हैं, followed by thoracic in the chest region, followed by lumbar in the upper abdomen, उसके बाद है sacrum in the lower abdomen and coccyx. Okay, so 7 cervical, 12 thoracic, 5 lumbar, 5 sacral, 4 coccygeal. ये numbers याद रखो. Okay, and then after that we हमने vertebrae का typical plan देखा, उसके अंदर के जो foramen process वगैरह देखा. So their arrangement कि कैसे वो present है. Okay, and then we have discussed about the thoracic cage. Okay, thoracic cage in the chest region which protects our lungs and also assists in breathing. So उसमें at the back side the thoracic vertebrae are included and in the front there is the chest bone called sternum. Okay, to which are connected the ribs. So how many ribs do we have? 12 pair. अब बराबर बोलिए. 12 pairs of ribs, okay, connecting the sternum in the front and thoracic vertebrae at the back. And उसके types हमने देख लिए. Okay, so sternum, ribs and thoracic vertebrae they together form the thoracic cage. तो यहाँ तक सब समझा अच्छे से, numbers वगैरह याद रखना है, right? And atlas and axis करके first and second cervical vertebrae also we have seen. So yes joint and no joint. Okay, so अभी यहाँ से continue करते हैं. We are going to complete the discussion on appendicular skeleton. Okay, so total 206 जो total number of bones है adults में, out of that 80 bones are in the axial skeleton and remaining 126 are a part of the appendicular skeleton. So बाकी केस जो 126 bones है वो आज हमें देखना है, and that will be a part of your axial skeleton, appendicular skeleton. Okay, so let's continue from here. ये भी एक लास्ट पॉइंट हमने देखा था, you remember gorilla rib. Like normally 12 pairs of ribs are there, but in some people about 8% of the population they have a 13th pair also, where a lumbar vertebra is also a part of the ribs. उसको gorilla rib करें. यहाँ तक हमने देख लिया था. Going ahead with appendicular skeleton. Okay,
My screen is visible. Yeah. So appendicular skeleton. The word has come from the word appendage. That means to the main axis there are other appendages present. Okay. So axial center वाला हो गया, appendicular उसके connected वाले हो गए. So when you talk about appendicular skeleton, so simply there are two pairs of girdles and two pairs of limbs. ये दोनों मिलाकर appendicular बनते हैं. So you have the pectoral girdle first. Pectoral girdle is also called as the shoulder girdle. Okay, you have shoulder also in the below the head region. Okay, so pectoral girdle is the shoulder girdle made up of only 4 bones. Okay, pectoral के बाद जो दूसरा girdle है, that is called as the pelvic girdle, and pelvic girdle is a part of the hips. Okay, so pectoral girdle, pelvic girdle, and then you have the bones of the limbs. Limbs का मतलब है the hands and the legs. तो hands को हम बोलते हैं forelimbs and legs are known as the hind limbs. Okay, each hand and each leg is having 30 bones. तो दो हाथ और दो पैर मिलाकर 30 into 4, that is 120 totally. Okay, appendicular skeleton के 126 में से 120 bones are a part of your limbs only. Getting it? So more than 50% of the bones in the body are there in our hands and legs. Okay, so let us see them one by one. So सबसे पहले pectoral girdle, that means your shoulders. You can see the ones which are in blue. Okay, so we have two shoulders, right? Bilateral symmetry, you know that. So ये दोनों मिलाकर अपना pectoral girdle बनते हैं. So pectoral girdle in the shoulders, they are made up of 2 bones. Both are in a pair. Okay, the first one is called clavicle. ये नाम पहले भी आया था, if you remember. Sternum के manubrium से connected. You remember that? Collarbone. उसको clavicle बोलते हैं. Okay, so you have one bone over here. Collar में ऐसा feel होता है एकदम से. Perfect अपना शर्ट का collar कैसे आता है वहीं पर है. Okay, that is the clavicle. So one clavicle on left side, one clavicle on the right side, 2 of them. And then the second one is called scapula. ये जो दो समोसे जैसे दिख रहे हैं, okay, that is called as the scapula, जिसको shoulder blade भी बोलते हैं. If you feel at the back, वहां पर एक triangular projection हमें feel होगा, just below the clavicle. Okay, वो scapula. So again, one scapula on each side. So एक side में one scapula and one clavicle, other side also one scapula, one clavicle, together forming the pectoral girdle. Okay, so अभी सबसे पहले we'll see the clavicle. Okay, ये ऐसे दिखेगा, collar, एकदम proper collar जैसा. Okay, so here in this clavicle, what you have to remember is, see, it is a S-shaped slender bone. Okay, it is not very sturdy. एक पतला सा ऐसा bone है and approximately S-shaped. Okay, and one end of the clavicle is attached to the scapula. ये देख, ये clavicle है, उसका जो एक end है वो scapula से connected है. Okay, and the other end also is scapula दिख रहा है triangular. Scapula के one side में there is something called acromion process. The acromion process of scapula is connected to the clavicle. Okay, so whenever you mention about the clavicle and scapula, you have to remember the word acromion process. Okay, the acromion process is the one which connects the scapula with the clavicle. Okay, then the other end, ये acromion process एक side हो गया जो scapula को connect कर. The other end of the clavicle is connected to the manubrium of the sternum. You remember that? Sternum याद है, part of the thoracic cage, correct? Also called as the chest bone or the breast bone.
सो उसका मैनूब्रियम, बॉडी एंड जिफॉइड प्रोसेस. ओके, सो मैनूब्रियम में स्टर्नल एंड करके प्रेजेंट है. दैट इज वेयर द क्लेविकल इज कनेक्टेड ऑन द अदर साइड. सो दोनों साइड का कनेक्शन याद रखें. ओके, तो इसका मेन फंक्शन क्या है क्लेविकल का? इट इज द वन विच कनेक्ट्स द अपर आर्म स्केलेटन, जो दोनों हैंड्स, ओके, टू द एक्सियल स्केलेटन. ये कनेक्शन हुआ ना, बिकॉज यहाँ पे जो लिखा है ह्यूमेरस, दिस इज द बोन ऑफ योर अपर आर्म. यहाँ पे ये ह्यूमेरस है. तो ह्यूमेरस बोन अबव योर एल्बो, दैट पार्ट इज कनेक्टेड टू द शोल्डर बाय दिस क्लेविकल. ठीक है, क्लेविकल का समझा अच्छे से? Acromion process, sternal end, हाँ. okay, and the connection. So you have to remember the word acromion. ठीक है, when we will discuss about the joints, तो ये shoulder girdle वापस आएगा वहाँ पे in one type of a joint. That time we will see it once again. ठीक है, and you have to identify this one as clavicle. Same way, we'll see the next one after clavicle, that is the scapula, which is the shoulder blade. Okay. अब ये स्कैपुला भी देखना, एकदम से ट्रायंगुलर सा बोन है, वेरी क्लियर एंड इजी टू आइडेंटिफाई. इट इज अ लार्ज फ्लैट ट्रायंगुलर बोन दैट ऑक्युपाइज द पोस्टीरियर चेस्ट वॉल. ओके, तो इसका जो एक्सटेंशन है ये भी याद रखना है, फ्रॉम द सेकंड टू द सेवेंथ रिब्स. 12 पेयर्स ऑफ रिब्स में से सेकंड टू सेवेंथ के पोजीशन में स्कैपुला प्रेजेंट है. ओके, ऑन वन साइड ऑब्वियसली. ठीक है, that location has to be remembered, and it is attached to the axial skeleton. So there are different types of muscles and tendons. Okay, तो यहाँ पे देखना अलग अलग प्रोसेसेस है, तो axial skeleton को कनेक्ट करते हैं. Any bone in our body is always not independently present. किसी न किसी से कनेक्टेड रहेगा ही, कोई मसल्स होगा या दूसरा बोन रहेगा. ओके, और मे बी अ टेंडन. ठीक है, इट विल बी कनेक्टेड, बिकॉज अदरवाइज वो क्या हो जाएगा कि बॉडी मूवमेंट्स के टाइम पर कोई ना कोई बोन डिस्प्लेस हो जाए, एंड दैट डजंट हैपन. करेक्ट. देन यहाँ पे देखना समथिंग कॉल्ड एज ग्लेनोइड कैविटी, दिख रहा है दिस साइड. ओके, देयर इज अ कॉनकेव सॉकेट टाइप स्ट्रक्चर. ओके, इसको ग्लेनोइड कैविटी बोलते हैं. ये इस साइड प्रेजेंट है. तो अपना जो एल्बो के ऊपर वाला बोन है, विच आई एम टेलिंग एज ह्यूमेरस, ह्यूमेरस का अपर पोर्शन इस ग्लेनोइड कैविटी में फिट है. तो व्हेन आई एम रोटेटिंग माय हैंड, आई एम मूविंग द हेड ऑफ द ह्यूमेरस ऑन द ग्लेनोइड कैविटी. ठीक है, तो एक्रोमियन प्रोसेस ऊपर था ऑन वन साइड, जिससे क्लेविकल कनेक्टेड था, एंड ग्लेनोइड कैविटी इज कनेक्टेड टू द हेड ऑफ द बोन ऑफ द अपर आर्म, दैट इज ह्यूमेरस. ओके, ये नाम याद रखना है, ग्लेनोइड कैविटी. ठीक है, सिमिलरली देयर आर टू अदर प्रोसेस दैट अराइज ओवर हियर. उसका नाम है कोराकॉइड प्रोसेस. ओके, ये जो दिख रहा है ये कोराकॉइड प्रोसेस, अ बीक लाइक वन. एंड द अदर वन इज एक्रोमियन प्रोसेस, जो हमने अभी देखा. एक्रोमियन प्रोसेस इज फॉर द अटैचमेंट ऑफ द क्लेविकल, and acromion as well as coracoid process both are meant for attachment of the muscles. तो स्कैपुला के बारे में जब हम बात करते हैं, तो व्हाट आर द पॉइंट्स यू हैव टू रिमेंबर? मेनली द ग्लेनोइड कैविटी, कोराकॉइड प्रोसेस एंड एक्रोमियन प्रोसेस. ये तीनों प्रेजेंट है स्कैपुला. ठीक है, क्लियर अबाउट दिस? एनी डाउट इन द पेक्टोरल गर्डल? ज्यादा कुछ है नहीं सच, बट नाम याद रखना है. एंड लोकेशन वेरी क्लियरली कि पेक्टोरल गर्डल के स्कैपुला इज प्रेजेंट एक्सटेंडिंग फ्रॉम सेकंड टू द सेवेंथ रिब्स. ये सब ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चंस पॉसिबल है. ठीक है, ओके, सो दैट वाज अबाउट द पेक्टोरल गर्डल. नाउ वी विल गो टू द बोन्स ऑफ द फोर लिम्स. ओके, अपने हाथों के बोन्स. तो our hands, if you say four limbs or the hands, both the hands together makes up 60 bones. पेक्टोरल गर्डल में सिर्फ 4 थे, 2 स्कैपुला 2 क्लेविकल. यहाँ पर दोनों हाथ के मिलाकर बनते हैं 60 बोन्स. ओके,
So what are the bones of our hands? It starts from the upper arm, then you have the elbow joint, then you have the lower arm, followed by your wrist, the palms and the fingers. ऐसे अपना अरेंजमेंट है हाथों का, correct? So what are the names of the bones? First one, bones of the arms include, सबसे पहले the humerus. तो नाम प्रोनाउंस करते जा, humerus. Humerus. Yes, ठीक है. इसको कभी कभी ना फनी बोन करके भी बोलते हैं. It is not at all funny. There is nothing funny in a bone because English में जो word है humerus, उसका मतलब है फनी ना. You have a good sense of humor ऐसे बोलते हैं. तो ऐसे करके कोरिलेट करके इसको फनी बोन करके बोलते हैं. ओके, बट इस बोन में देयर इज नथिंग फनी ऑब्वियसली. इसका नाम है ह्यूमरस. तो वन ह्यूमरस इन ईच आर्म. इसका मैंने 1+1 करके लिखा. ओके, वन इन ईच आर्म. नेक्स्ट वन, बिलो द ह्यूमरस यू हैव समथिंग कॉल्ड रेडियस. ओके, ये वाला जो है रेडियस. देखना बिलो द एल्बो जॉइंट. यहाँ पे देखना अपर आर्म की तरफ देखा जाए तो ओनली वन बोन इज प्रेजेंट, but on the lower side between the elbow and the wrist you can see there are two bones present. तो अपने हाथों में यहाँ पर अगर देखेंगे तो दो bones हैं. Okay, one side is the radius, the other one is ulna. ये देखो, Ulna. yes, radius and ulna. So one radius, one ulna on each arm, one radius, one ulna in the other arm. ठीक है. Then जहां पे रेडियस अल्ना एंड होते हैं यू हैव द कार्पल्स. कार्पल्स आर द बोन्स ऑफ द रिस्ट. कलाई बोलते हैं ना रिस्ट को, राइट? तो दैट इज आवर रिस्ट. तो देयर आर 8 बोन्स इन आवर रिस्ट. ये दिखा है छोटे छोटे बोन्स, दे आर द रिस्ट. ओके, 8 of them in each arm, followed by metacarpals. ओके, ये है अपने बोन्स ऑफ द पाम. ठीक है. तो 5 metacarpals in each arm. And lastly the bones of the fingers are called phalanges. तो एक हाथ के पांचों उंगलियों को मिलाकर 14 बोन्स. यू कैन इमेजिन कि एक फिंगर में देखना ऐसे मैंने बेंड किया तो 1 2 3, तो 4 फिंगर में से 3 है, थंब में 2 है. So 4 into 3 12 plus 2 of the thumb 14. ठीक है. तो 14 on one arm, 14 on the other arm, उसको बोलते हैं phalanges. तो यहाँ पे हम लोग नॉर्मली फिंगर्स करके बोलते हैं, बट द टेक्निकल वर्ड वुड बी डिजिट्स. फिंगर्स को हम डिजिट्स बोलते हैं. तो हाथ के हो या पैर के हो उनको फिंगर्स को हम बोलते हैं डिजिट्स. ओके, लाइक द वर्ड्स लाइक हैंड्स, ओके, या फिंगर्स, ये कॉमन टर्म्स है, but technically the words are limbs. इसलिए यहाँ पे bones of the 4 limbs करके बोलते हैं. ठीक है. So humerus, radius, ulna, carpals, metacarpals, phalanges. समझो अच्छे से. ठीक है. Let us see one by one. बाकी सबके ज्यादा नहीं है, but humerus and radius, ulna के बारे में थोड़ा सा देख. ठीक है. So for talking about the humerus, which is the bone of the upper arm. एंड एज यू कैन सी ये जो बोन है ये लॉन्ग बोन्स होते हैं, इलोंगेटेड बोन्स है ना. तो इसमें क्या रहेगा, सही सबसे पहले टुवर्ड्स द प्रॉक्सिमल एंड. अभी ऐसे लंबे जो बोन्स होते हैं उसमें एक होता है प्रॉक्सिमल एंड, एक होता है डिस्टल एंड. प्रॉक्सिमल एंड मतलब द वन विच इज टुवर्ड्स द मेन बॉडी. ओके, जैसे अगर बोन है तो एक एंड मेरे मेन शरीर की तरफ है, दूसरा एंड शरीर से दूर है, तो प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल एंड. ओके, तो प्रॉक्सिमल एंड जो शरीर की तरफ है, देयर इज अ हेमिस्फेरिकल हेड पोर्शन ओवर हियर. ओके, एट इट्स प्रॉक्सिमल एंड. एंड ऑन द अदर साइड टुवर्ड्स द डिस्टल एंड, नहीं सॉरी, टुवर्ड्स द हेड ऑन बोथ द साइड्स you can see there is something called greater and lesser tubercles. दो ऐसे प्रोजेक्शन दिख रहे हैं हेड पे, एक है ग्रेटर ट्यूबरकल, दूसरा है लेसर ट्यूबरकल. ओके, so on the proximal side first of all there is a hemispherical head,
जिसके दोनों साइड में है projections which are called greater and lesser tubercles. Okay, and दोनों tubercles के बीच में there is a slight depression जिसको बोलते हैं bicipital groove. Okay, like when we are talking about the upper arm, you must have heard about the biceps muscle. जो बॉडी बिल्डर्स लोग ऐसा ऐसा करते हैं ना, बाइसेप्स, हाँ है ना, तो उसमें ये बाइसेप्स मसल का टेंडन जो है वो बाइसेपिटल ग्रूव से कनेक्टेड है. ओके, लाइक आफ्टर दिस व्हेन वी विल डिस्कस अबाउट द मसल्स, तो उसमें ये बाइसेप्स ट्राइसेप्स तो फिर से आएगा. ओके, दैट्स व्हाई यू हैव टू रिमेंबर द नेम्स ऑफ द बोन्स दैट टाइम. ओके, सो ह्यूमेरस के हेड पोर्शन के दोनों साइड में देयर आर प्रोजेक्शंस कॉल्ड एज ट्यूबरकल्स, ग्रेटर एंड लेसर. दोनों के बीच में प्रेजेंट है बाइसेपिटल ग्रूव. In that bicipital groove, there is a tendon to which a biceps muscle is attached. Okay, so when you are doing this like this, you have to recollect bicipital groove. Okay, then जो main body है humerus का, we call it as the shaft. Okay, and shaft के ऊपर एक ऐसा deltoid tuberosity करके present है. This word also you have to remember. Kind of a slight groove or an extension of the bicipital groove you can see, जिसको बोलते हैं deltoid tuberosity. Okay, and जो distal end है, जैसे ये हमने proximal end का देख लिया, head है, tubercle है, bicipital groove है. Same way on the distal end there is a pulley like portion जिसको बोलते हैं trochlea. You can see this small projection, इसको बोलते हैं trochlea. This trochlea, because इसके नीचे वाले portion में you have radius and ulna below the elbow portion. So trochlea is the one जो ulna के साथ articulate करे, and that's why you have that elbow joint. Okay, वो है distal end of the humerus. Okay, so in this picture you can see the real bones. यहाँ पे ये one end, this is the other end. So ये जो दिख रहा है, you can see my cursor. Tell me whether it is the proximal end or the distal end. proximal end. Yes, and यहाँ पे projection दिख रहा है trochlea. हाँ It's the distal end. हाँ Okay, so humerus का main point समझा. हाँ Okay, अभी एक coronoid fossa करके भी है, ये हम लोग joints के टाइम पे देखेंगे, इसमें अभी नहीं बता रहा हूँ मैं कुछ. ठीक है, so for now you have to remember the terms proximal and distal end, greater and lesser tubercles, bicipital groove, okay, deltoid tuberosity and trochlea. ठीक है, समझा ह्यूमरस के बारे में अच्छे से. हाँ ये सारे टर्म्स याद रहना चाहिए. ठीक है, so after the humerus now we go to the lower part of the upper arm, that is the radius and ulna. ओके, अभी रेडियस एंड अल्ना जैसे दो एक साथ है तो वी विल सी देम टुगेदर. तो इन रेडियस एंड अल्ना में ये याद रखना है कि कैसे वो प्रेजेंट है. ओके, सो रेडियस जो है इट इज सेड लोकेटेड लैटरली. दैट मींस अगर मेरा हाथ ऐसा है तो माय थंब इज ऑन दिस साइड, सो ऑन व्हिचएवर साइड माय थंब इज देयर उस साइड में रेडियस है, और जो अंदर वाला साइड है वहां पे अल्ना है. दैट वे यू हैव टू रिमेंबर. So radius is on the outer side, lateral side, and ulna is on the inner side. Is it clear? yes. ठीक है, तो radius is located laterally on the thumb side. अभी radius का कैसा है, see ये दोनों भी long bones है, elongated bones. तो radius का जो head portion है, it is a disc like one. Okay, and ये directly articulate करता है humerus के साथ. ठीक है, and then the lower part, the shaft of that radius will widen. पहले पतला रहेगा, नीचे नीचे आते आते थोड़ा सा ब्रॉड हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं styloid process. Okay, which is a part of the radius. ठीक है, हर एक बोन के साथ कोई ना कोई प्रोसेस या डिप्रेशन या प्रोजेक्शन समथिंग इज देयर, तो उसका नाम याद रखना है. ओके, तो एग्जाम में जैसे क्वेश्चन क्या आ सकता है कि द स्टाइलॉइड प्रोसेस इज एसोसिएटेड विद डैश बोन, तो योर आंसर शुड बी रेडियस. ठीक है, सो द रेडियस हैज गॉट अ डिस्क लाइक हेड, देयर इज अ शाफ्ट which widens towards the distal end, and there is a process called styloid process.
Okay, and the other side has got the ulna, ये वाला, और ये प्रेजेंट है टुवर्ड्स द लिटिल फिंगर साइड. ठीक है, लोकेशन बराबर याद रखना है. तो इस अल्ना में क्या है, ऑन द प्रॉक्सिमल एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ओलेक्रेनॉन प्रोसेस. ये ओलेक्रेनॉन प्रोसेस बनाएगा एल्बो जॉइंट ह्यूमेरस बोन के साथ. ठीक है, सो व्हेन यू टच योर एल्बो यू विल फील दैट ओलेक्रेनॉन प्रोसेस ओवर हियर, जो अल्ना का हेड विद द ह्यूमेरस. ठीक है, and there is something called as a radial notch on this side. You can see radius is comparatively smaller in length than the ulna. तो radius का जो head portion है वो ulna के ऊपर present है, radial notch उसमें fit है. Okay, so you can see it here also in the real picture कि ulna has got a notch on the upper side near the head side into which the head of the radius fits. ठीक है, so olecranon process is for the attachment of the humerus forming the elbow joint, and radial notch is for the attachment of the radius bone. Okay, and then दोनों radius and ulna ये दोनों end में articulate करते हैं. In between there is a gap, but on the upper side, on the lower side, दोनों में जब वो ज्वाइन होते हैं तो उसको बोलते हैं सुपीरियर एंड इंफीरियर रेडियो अल्नार जॉइंट. सुपीरियर इज टुवर्ड्स द एल्बो, inferior is towards the wrist. So you have superior, inferior, radio ulnar joints. ठीक है, and in between both the shaft, ये जो gap है बीच में, it is not a hollow gap. There is something called as interosseous membrane present over. Okay, inter मतलब in between, osseum मतलब bone, इसलिए उसको interosseous membrane बोलते. Clear about this? Yes. ठीक है, तो ये नाम जरा प्रोनाउंस कर. स्टाइलॉइड प्रोसेस. Styloid process. ओलेक्रेनॉन प्रोसेस. Olecranon process. Very good. And interosseous membrane. Interosseous membrane. ठीक है, ओके. अच्छा, नेटवर्क कम है क्या, वीडियो ऑफ है? हाँ, ओके, इसलिए ऑफ रखा, वो स्क्रीन ही नहीं दिख रहा था. अच्छा अच्छा, ठीक है. ओके, सो ह्यूमेरस एंड रेडियस ना दोनों समझा. हाँ. ठीक है, तो एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन है. दैट्स व्हाई मैंने जो की वर्ड्स है ना वो यहाँ पे हाईलाइट करके रखा है, सो इट विल बी इजी फॉर यू टू रिमेम्बर. हाँ. एंड अगर अपना नोट्स वगैरह कभी बनाने को बैठेगी ना, स्पेशली फॉर दीज हम्म. बोन्स, तो हर एक बोन का नाम लिखकर उसका नंबर, लाइक यू कैन मेक अ टेबल इफ यू वांट. हाँ. ठीक है, तो वो अच्छा पड़ेगा. तो टेबल में क्या होगा, नेम ऑफ द बोन, नंबर, लोकेशन एंड कीवर्ड्स, ऐसे करके टेबल बना. सो यू कैन कंपाइल दैट, है ना, तो रिवाइज करने के लिए भी आसान हो जाएगा. ठीक है, ओके. So after humerus and radius ulna, now we come to the distal part of the forelimbs. So carpals, metacarpals, phalanges. इसके सिर्फ लोकेशन नंबर याद रखना. Like there is not much detail about each one. ठीक है, so as you know the carpals वो है bones of the wrist. Okay, तो अपने कलाई के bones है. So how many bones are there? 2 rows of 4 bones. ओके, तो यू कैन सी एक रो है 4 बोन्स का, उसके नीचे और 4 बोन्स, टोटली 8 बोन्स. ओके, इतना ही याद रखना. सो कार्पेल्स मींस बोन्स ऑफ द रिस्ट अरेंज्ड इन 2 rows of 4 each, टोटली 8 bones in one hand. ठीक है, आफ्टर कार्पल्स यू हैव मेटाकार्पल्स. ओके, मेटाकार्पल्स मींस या बोन्स ऑफ द palms. तो palms में कैसा है, you can see over here there are 5 elongated bones. दिख रहा है यहाँ पे, क्लियर हाँ. है ना. इवन ये जो कार्पल्स, जो रिस्ट के बोन्स मैंने बोले, उसके नाम भी दिए, दिख रहे हैं. ओके, व्हेन आई वाज इन 12th स्टैंडर्ड तभी हम लोग को ये नाम भी लर्न करना था कार्पल बोन्स के. तो ट्रेपिजॉइड, ट्रेपीजियम, स्कैफॉइड, कैपिटेट, ल्यूनेट, ट्राइक्वेट्रल,
pisiform, hamate, ये सारे बोन्स के नाम है, ठीक है. इफ यू वांट यू कैन जस्ट रिमेंबर, अदरवाइज यू जस्ट नीड टू नो द नंबर. बट मेटाकार्पल्स के 5 बोन्स, ये 5 elongated ones, nothing much to be remembered over there. तो उसमें कैसा है कि जो proximal end है towards the wrist, वो कार्पल्स के बोन के साथ कनेक्ट करते हैं, एंड जो डिस्टल एंड है दे आर कनेक्टेड टू द phalanges. So that's why you have the knuckles. ये हम लोग हाथ में ऐसे तोड़ते हैं ना, आवाज आता है कभी कभी, याद है? हाँ. तो ये मेटाकार्पल्स एंड phalanges के बीच का पोर्शन को हम ब्रेक करते हैं. ओके, एंड यू गेट दैट बट साउंड. क्या होता है वो? एक्चुअली लाइक जॉइंट्स में ना कभी कभी एक साइनोवियल फ्लूइड करके प्रेजेंट है, उस फ्लूइड में एयर बबल्स आ जाते हैं. सो व्हेन यू ब्रेक दिस, तो वो एयर बबल्स एक्चुअली फुट. ओके, तो कभी बोलते हैं कि वो ज्यादा नहीं करना चाहिए, बिकॉज उसमें गैस फॉर्म होने के चांसेस है, एंड देन इट कैन द ओल्ड एज इट कैन लीड टू आर्थराइटिस, जॉइंट पेन्स वगैरह बढ़ सकते हैं. ओके, नेचर ने वो लुब्रिकेशन के लिए दिया है, तो उसको ऐसे ही रहने देने का. ओके, एंड लोग तो मतलब इससे रिलेटेड बहुत कुछ करते हैं ना, कि ऐसे ब्रेक कर दिए, किसी का नजर उतर दिए, राइट. सो दैट इज दिस वन. तो ये अपने नकल्स है, एंड यहाँ पे ऐसे प्रोजेक्शन दिखाई देते थे. हाँ. वो ये मेटाकार्पल्स एंड phalanges का, ठीक है. देन नेक्स्ट यू हैव the phalanges, which are the bones of your digits. That means fingers and thumb. अभी we have already discussed a little bit about evolution. So you know human evolution में जब monkeys से apes बने, और in the height of the mammalian evolution, तो thumb का formation अपने evolution में बहुत significant था. ओके, ये जो थंब है ना अपना, वी कॉल इट एज ऑपोजिबल थंब. ओके, जैसे फिंगर्स का मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड है ओनली इन वन डायरेक्शन, बट थंब कैन मूव इन ऑल द डायरेक्शंस. ओके, लाइक इन आवर डे टू डे लाइफ बहुत सारे एक्टिविटीज हैं, इफ यू जस्ट रिकलेक्ट, इट इज नॉट पॉसिबल टू डू विदाउट योर थंब. है ना, कि ट्राई टू होल्ड अ पेन एंड राइट समथिंग. ओके, जैसे लैपटॉप में माउस चला रहे हैं तो विदाउट यूजिंग द थंब. ओके, मोबाइल लेके कुछ टाइप करना है, यू नीड द थंब. है ना, रोटी तोड़ के खाना है तो यू नीड द थंब. करेक्ट. सो थंब इज समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट इन द हाइट ऑफ एवोल्यूशन, इसलिए उसका अरेंजमेंट अलग ही, एंड इट हैज गॉट ओनली 2 बोन्स. ईच वन इज कॉल्ड एज अ phalanx. बहुत सारे सब एक साथ टुगेदर है तो phalanges. ओके, सो 4 फिंगर्स में 3 phalanges हैं, तो टोटलिंग 12, एंड 2 ऑफ द थंब, दैट इज 14. ठीक है, ऐसे करके अपना phalanges का अरेंजमेंट है. नथिंग एल्स टू रिमेंबर फॉर दिस, एटलीस्ट एट दिस लेवल. तो उसमें भी ऐसे कह सकते हैं कि जैसे पाम्स के बाद, जैसे ये एक फिंगर है, तो इसमें 1 2 3 phalanges है. तो द वन नियर द पाम, उसको मैं बोलता हूँ प्रॉक्सिमल, मिडल, डिस्टल. तो ईच phalange except the thumb has got a proximal, middle and a distal phalanx. Thumb में, in the case of thumb, it is only proximal and distal. There is no middle phalanx. इतना याद रख सकते. ओके, तो ये समझा अच्छे से? हाँ. Easy to remember, है ना? तो ये हो गया अपने हाथों के बोन्स, 4 limbs के 60 bones. Clear with this? Yes. So appendicular skeleton में we have discussed about pectoral girdle and we have discussed about the bones of the 4 limbs. अब हाथ और शोल्डर हो चुका. अब we will go towards the posterior part of the body and we will go to the hind limbs first. ठीक है, hind limbs and pelvic girdle, that will be the end of this topic. ठीक है, so जो hind limbs हम बोलते हैं, that is our legs. So the pattern is almost similar to our hands. ठीक है, जैसे हाथों में कैसा था कि there was one bone called humerus, फिर यहाँ पे 2 bones, radius ulnar, फिर अपने wrist, palms and fingers. उसी तरह का similar pattern यहाँ पर भी है, but slight differences. So that we will see. ठीक है, so यहाँ पर hind limbs में, see hind limbs and forelimbs में the pattern remains the same, but still hind limbs have got longer and stronger bones,
एंड द रीजन इज क्वाइट ऑब्वियस कि हाइंड लिम्स जो है उसके ऊपर पूरे शरीर का वेट है, तो बोन्स का अरेंजमेंट भी उसी तरह से होना चाहिए, which the forelimbs may not require, because अपने हाथ तो जनरली फ्री रहते हैं, like हाथ के ऊपर इतना वजन नहीं आता है जितना पैरों के ऊपर आता है, so the planning is done that way. Okay, so when you talk about the hind limbs, okay, the first thing, bones of the legs, you have something called as femur. बोलते जाओ. femur, Femur. Okay, so femur is our thigh bone. Okay, the thigh portion है उसका bone है, तो one in each leg. Okay, that's why 1 + 1. Then you have something called patella. नाम बहुत अजीब है. patella, Yes. Okay. Patella, one in each leg. इसको बोलते हैं नी कैप. ओके, जो अपने घुटने होते हैं ना, नी, उसके ऊपर एक टोपी रहता है, उसको पटेला बोलते हैं, छोटा सा बोन है. ओके, ये अपने एल्बो जॉइंट में कोई सेपरेट बोन नहीं था देखना, हाँ, बिकॉज यहाँ जरूरत नहीं था, बट यहाँ नीज में जरूरत है, बिकॉज यहाँ पे वजन बैठा है ना पूरे शरीर का, तो इसीलिए उसको नी कैप करके एक सेपरेट बोन दिया हुआ है कॉल्ड पटेला. ओके, एंड डोंट आस्क मी क्यों ऐसा नाम पड़ा है करके, व्हेन आई डोंट नो, बट नाम है पटेला. ठीक है, आई हैव सीन मेनी स्टूडेंट्स इन द एग्जाम, दे राइट पी की जगह एफ कर देते हैं, दे मेक इट पटेला. ओके, सो यहाँ कुछ पटेला वगैरह नहीं है, नाम है पटेला. ठीक है, देन आफ्टर दैट यू हैव, जैसे रेडियस चलना था आपने, तो इन द लेग पोर्शन बिलो द नी जो रीजन है ना, इसको बोलते हैं शैंक या शिन पोर्शन बोलते हैं. यू कैन सी 2 बोन्स ओवर हियर. ओके, तो शैंक या जो शिन पोर्शन में 2 बोन्स हैं उसको बोलते हैं टिबिया, एंड द अदर वन इज फिब्यूला. fibula, Yes. Okay, tibia is the longer one, fibula is the smaller one. Can you tell the reason कि इस पोर्शन में से 2 बोन्स क्यों दिया है? Why not just one single bone? क्या रीजन हो सकता है? मूवमेंट के लिए, मूवमेंट में हेल्प हो जाएगा, एक की जगह 2 बोन्स हो गया तो. मतलब फ्लेक्सिबिलिटी रहेगा ना. ओके, अच्छा, और एक, इफ यू नोटिस कि इन द थाई रीजन देयर इज जस्ट 1 बोन एंड बिलो हाँ, देयर आर 2 बोन्स. व्हाई नॉट द रिवर्स? या ऐसे क्यों नहीं कि यहाँ 2 बोन्स और यहाँ 1 बोन है? नहीं, वो नीचे ज्यादा प्रेशर आ रहा है ना, तो और एक बोन हुआ तो. यस, नाउ यू आर गेटिंग इट राइट. नीचे 2 हाँ, बोन्स होने का फायदा क्या है कि जो प्रेशर, जो वेट आ रहा है, वो थोड़ा सा डिवाइड हो जाएगा. ओके, एंड दैट गिव्स इट easy to bear the body weight. Getting it? So if you talk about an adult human being, approximately in a very broad range अगर बोला जाए तो 50 to 60 किलो के वेट में रहते हैं, है ना? तो उसका कुछ 90% हिस्सा तो घुटनों के ऊपर ही है, राइट? तो वो वजन अगर उस पर बैठ रहा है तो द बोन्स हैव टू बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू विथस्टैंड दैट. अगर ऊपर 2 बोन्स नीचे 1 रहता तो ये 2 बोन वैसे ही क्रश हो जाते. हाँ, Okay, that's the planning of the nature, right? So tibia 1, fibula 1. Okay, then you have the tarsals. ये देखना. Okay, जहाँ पे एंड हो रहा है, जो अपने रिस्ट पोर्शन था वैसे पैर के उधर का, these ones, ये है tarsals. ठीक है, तो यहाँ पे एक एक बोन कम हो गया, रिस्ट में 8 थे ना, यहाँ पे एक कम हो गया, तो दिस इज मैनेज्ड बाय द पटेला, जो वहां पे नहीं था, इसलिए टोटल नंबर रिमेन्स द सेम. ठीक है, तो यू हैव 7 टार्सल्स फॉलोड बाय मेटाटार्सल्स, जो अपने फीट है. ओके, फीट पोर्शन में जो अपने पाम्स थे उसका कोरिलेट करते हुए फीट, तो यू हैव मेटाटार्सल्स. वहां कार्पल्स, यहाँ टार्सल्स, रिमेंबर. ठीक है, एंड द लास्ट नेम इज द सेम, दैट इज phalanges, fingers, the bones of the digits. ठीक है, सो बाकी सब में देखा गया तो नंबर इज द सेम, एक्सेप्शन इज कि यहाँ पे एक्स्ट्रा बोन है पटेला, एंड टार्सल्स में 1 बोन इज लेस. इज इट क्लियर? यस, ठीक है, नाम और लोकेशन समझ में आ गया अच्छे से? हाँ, ठीक है, ओके. Okay, so let's talk about each bone one by one of the hind limbs. The first one we will see is the femur, that's the thigh bone. ठीक है, अब ये जो femur है, you can correlate this femur with the humerus,
एंड सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है कि द फीमर इज द longest and the largest bone in the entire body. Which was the smallest bone we had discussed? स्टेप्यूला। ये कौन सा नया नहीं बोन नहीं नहीं नहीं, एक ईयर का बोन है। नया को अवार्ड मिलना चाहिए, नया नया बोन से इन्वेंट कर रही है। क्या यस था वो, ऐसे ही था बोन, वो छोटा सा पिन जैसा। करेक्ट। अच्छा वो इसीलिए स्टेपुला कर दिया। नहीं वो बोन जैसा ही था ना कुछ तो। उसका नाम था स्टेप्स। हाँ स्टेप। ओके, स्टेप्स को अभी जैसे चिंटू को चिंटुकला बोला था वैसे स्टेप्स को स्टेपुला बुला दिया। ओके, सो इसका नाम है दैट इज द स्मॉलेस्ट वन, द स्टेप्स ऑफ द मिडिल ईयर। ओके, एंड हियर इट इज द फीमर व्हिच इज द लॉन्गेस्ट एंड द लार्जेस्ट बोन। ये दोनों याद रखना। ओके, थाई रीजन पे। सो अभी अगेन इट्स अ लॉन्ग बोन, इलोंगेटेड वन। तो देयर इज अ हेड पोर्शन। ओके, सो इसका जो हेड पोर्शन है यू कैन सी एक प्रॉपर बॉल लाइक प्रोजेक्शन है दिखना हेड में। ओके, तो अभी हम लोग को लॉजिकली समझना है कि ये हेड पोर्शन है, थाई पोर्शन है। सो थाई के ऊपर पूरे शरीर का वजन पकड़ना है तो एक प्रॉपर हेड होना चाहिए। ओके, एंड आफ्टर दिस वी आर गोइंग टू सी समथिंग कॉल्ड पेल्विक गर्डल। तो पेल्विक गर्डल के कॉक्सल बोन में एक डिप्रेशन होता है जिसको बोलते हैं एसिटाब्यूलम। तो ये हेड ऑफ द फीमर फिट्स इनटू द एसिटाब्यूलम ऑफ द पेल्विक गर्डल। तो वहां पे जॉइंट तैयार हो जाते हैं। ओके, जैसे ह्यूमेरस का अटैचमेंट स्कैपुला के साथ था, सेम वे द फीमर अटैचेस टू द पेल्विक गर्डल। ठीक है, तो ये नाम याद रखना है कि इट हैज गॉट अ बॉल शेप्ड हेड दैट फिट्स इनटू द एसिटाब्यूलम ऑफ कॉक्सल बोन। ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट। ये दिख रहा है हिप जॉइंट तैयार होता है देखना इसके वजह से। ओके, दैट इज द हेड पोर्शन। ओके, एंड जो लोअर पोर्शन है द अदर एंड, इट इज अ ट्रायंगुलर फ्लैटेंड एरिया। ओके, नीचे जहां मेन है उसका इलोंगेटेड पोर्शन है 1/3 रीजन, इट्स अ ट्रायंगुलर फ्लैटेंड एरिया जिसको नाम दिया है पॉप्लिटियल सरफेस। जस्ट रिमेंबर द नेम कि फीमर के लोअर एंड में द शाफ्ट एक्सटेंड्स टू फॉर्म अ ट्रायंगुलर एरिया कॉल्ड पॉप्लिटियल सरफेस। ठीक है, वो नाम भी याद रखना। ओके, then the other end, एकदम lower end of the femur has got two condyles. Now condyle word is again not a new one for you, है ना। हमने स्कल में ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल करके देखा था, जो एटलस बोन में बैठते हैं एंड यू गेट अ यस जॉइंट, है ना। उसी तरह से फीमर के लोअर एंड में भी दो कॉन्डाइल्स हैं जो एक एक करके टिबिया फिबुला के साथ आर्टिकुलेट करते हैं। Okay, that's how it articulates. So you can see over here. Okay, this is one condyle called lateral condyle and the other one internal one called medial condyle. So lateral one called articulates with tibia and medial one articulates with fibula, vice versa, whatever. Okay, ये दोनों condyles है जो articulate करते हैं। ठीक है, understood about the femur properly? Yes. ठीक है, तो ये मेन पॉइंट इसमें क्या याद रखना है, इट इज द लॉन्गेस्ट एंड द लार्जेस्ट बोन। ओके, एंड उसमें कॉन्डाइल्स प्रेजेंट है, पॉप्लिटियल सरफेस है एंड इट आर्टिकुलेट्स विद द बोन्स बिलो दैट। एंड यहाँ पे देखना, कैन यू सी द पटेला आल्सो? ये देखो, Yes. नी जॉइंट है, छोटू सा बोन है। तो अपने घुटनों में प्रेस करेंगे तो भी पता चलेगा, पटेला दिखाई देगा वहां पे, फील होगा वहां पे, है ना। So remember that's the patella. That's the next one. ठीक है, ये है अपना नी कैप, ये घुटनों का टोपी। ओके, तो इट्स अ सिंपल बोन एज यू कैन सी, छोटा सा आटे का गोला जैसा दिख रहा है कि नहीं, राइट। सो इट हैज गॉट अ बेस एंड इट हैज गॉट एन एपेक्स। ओके, तो पटेला जो है ऑल्सो कॉल्ड एज द नी बोन एंड इसका दूसरा नाम है सेसमॉइड बोन। इट्स अ सेसमॉइड बोन। ओके, तो एक फ्लैट राउंडेड बोन हैविंग अ पॉइंटेड लोअर एंड कॉल्ड एपेक्स। बाकी कुछ नहीं याद रखना है इसका। ओके, लोकेशन याद रखना है, नंबर याद रखना है
It's a kind of a sesamoid bone that fits into the lower end of the femur and also with the tibia fibula. So there is a rounded base and a pointed apex. That's a patella. Okay, one in each hind limb, followed by next one, that is tibia fibula. The portion below the knee is called as the shank or the shin portion. Okay, so it is again very similar to that of radius ulna, but यहाँ पे मेन क्या याद रखना है कि जो टिबिया है, okay, so tibia fibula में the two of them are connected towards the extremity, जैसे radius ulna में था वैसे, but यहाँ पर the tibia is a comparatively larger and longer one as compared to the fibula. Radius ulna में इतना difference नहीं था, and same like the radius ulna, दोनों extremities में connected हैं, but in the center there is something called as interosseous membrane that is present in between the two. Okay, same नाम है again. And tibia अगर देखा जाए तो thicker and stronger, broad and the upper expanded end, you can see it here. Okay, it articulates with the femur. Okay, femur के दोनों condyles जो है वो tibia से articulate करते हैं, and जो lower end है that articulates with something called talus. Okay, जो 7 bones है, tarsals हमने बोले थे, उसमें से एक bone का नाम है talus. Okay, that articulates with the tibia over here. ठीक है, ये नाम याद रखना है, talus. That is the one to which the tibia is articulated. And fibula is a long slender bone which is located on the lateral side. तो ये lower end में tarsal से articulate करते हैं, upper end में tibia के साथ articulate करते हैं. तो on the tibia there is a facet to which the head of the fibula is attached. ठीक है, कि मतलब एक kind of a depression, उसमें उसका head fit हो गया. तो tibia fibula properly articulated. ठीक है, I don't think nothing much to remember over here. किसका articulation कहाँ पर है, किसके साथ है, उसमें क्या projections है, बस वही यहाँ पर. And the same name, interosseous membrane. ठीक है, so that is about the tibia and fibula. इसके बाद we will go to the lower portion of the feet, that is the tarsals, metatarsals and phalanges. Okay, so same way, tarsals क्या है, they are the bones of your ankle. पैर में अपने को ankle पता चलता है ना, एक प्रोजेक्शन है वन साइड में, वो अपने एंकल के बोन्स है. तो टार्सल्स मतलब बोन्स ऑफ योर एंकल. ओके, तो एंकल बोन्स देखना है यहाँ पे, ऑल ऑफ देम हाउ दे आर अरेंज्ड. जो देयर आर 7 tarsals arranged in 3 rows, 2 proximal, 1 intermediate, 4 distal. So 2 plus 1 plus 4, that is 7. Okay, तो यहाँ proximal end में 2, बीच में 1 intermediate and 4 distal. ओके, ऐसे करके 4 अलग अलग रोज में, 3 रोज में प्रेजेंट है. ओके, तो यहाँ पे 2 प्रॉक्सिमल, 1 इंटरमीडिएट एंड 4 डिस्टल बोन्स, उनको बोलते हैं टार्सल्स. तो देयर आर 7 ऑफ देम फॉर्मिंग द बोन्स ऑफ योर एंकल. तो अगर कार्पल्स आर योर रिस्ट बोन्स, टार्सल्स आर योर एंकल बोन्स. ऐसे कोरिलेशन सब याद रखना है. मेनली द क्वेश्चंस आर आस्क्ड ऑन दिस पैटर्न ओनली. ठीक है, after the tarsals you have metatarsals. तो अपने पैरों का सोल. So especially girls wear those heels, shoes पहनते हैं ना, हाँ लंबे लंबे, ऐसे लगता है एकदम ऐसे पैर फीट ऐसा नहीं रहता, ऐसा रहता है कभी कभी, है ना. हाँ तो उसमें जो हील्स पहनते हैं वो सोल जो पोर्शन है, that is the metatarsals. ठीक है, so I don't know how they walk or something. उसमें भी जो पेंसिल हील टाइप आते हैं वो तो पता नहीं कैसे चल देते हैं, राइट. हम लोग नॉर्मल चप्पल पहनते तो कभी कभी वो भी सरक जाता है पैर से, तो ये हील्स तो अलग ही बात है. तो एनीवेज दैट इज एसोसिएटेड विद मेटाटार्सल्स. एंड उसमें भी कैसा है, यू कैन सी द मेटाटार्सल्स ओवर हियर. जैसे अपने पाम्स कहते हैं वैसे ही है कि देयर इज अ प्रॉक्सिमल एंड देयर इज अ डिस्टल एंड. प्रॉक्सिमल एंड आर्टिकुलेटेड विद द टार्सल्स, डिस्टल एंड आर्टिकुलेटेड विद phalanges. ठीक है, डू यू वेयर हील्स? यस.
हाँ हाँ, ओके, चलो, anyways, if you are able to manage then well and good, बस गिर मत जाना. हाँ. Right, and then the last one is about the phalanges. So that is the bones of your toes, है ना. तो toes में कैसा है ना, in the feet we don't have a thumb, okay, we have fingers, but जो सबसे पहला toe है बड़ा वाला, okay, that is the big one, इसमें दो phalanges है and बाकी सब में तीन तीन. So you can imagine how tiny the bones must be, especially अपने feet के जो last finger है कितना छोटा सा रहता हाँ. है, उसमें तीन bones है, you can imagine. Okay, तो वो तीन अपना phalanges है. So you can see big toe has got two phalanx, हाँ. the remaining have got three of them. तो ये तीसरा देखना कितना चिंटूस है. Okay, so total number is up to 14. That's the number. So phalanges of the hind limbs means the toes and phalanges of the forelimbs means the fingers. ऐसे करके ध्यान रखना. ठीक है, अच्छी तरह समझा. hind limbs हाँ. easy है, not much difficult, right? हम्म. Yes. अब जो आखिरी पार्ट बचा हुआ है appendicular skeleton का, that is the bones of the hips. Okay, the pelvic girdle. ओके, कमर के बोन्स. तो ये भी जरूरी है बिकॉज ये एक बहुत बड़ा कनेक्शन बन जाता है एंटीरियर बॉडी एंड पोस्टीरियर बॉडी के बीच में, है ना. द बोन्स ऑफ द हिप्स. तो पेल्विक गर्डल व्हेन यू से इट इज कंटेनिंग ओनली टू बोन्स. ठीक है, सो पेल्विक गर्डल. नाउ यू रिमेंबर दिस बोन सैक्रम, ये देखो, हाँ. एंड उसके नीचे ये कॉक्सिक्स, हाँ, नीचे है ना. कॉक्सिस. करेक्ट. तो ये अपने पोस्टीरियर साइड में हो गया. तो उसी सैक्रम और कॉक्सिक्स से कनेक्टेड, स्पेशली द सैक्रम, you are having these two bones on the sides which form the pelvic girdle. Okay, तो ये hind limbs के skeleton को axial skeleton से connect करता. जो scapula था pectoral girdle का, वो connect कर रहा था forelimbs के skeleton with the axial skeleton. ये hind limb skeleton with axial skeleton. Okay, so here it is having two hip bones, जिसका नाम है coxal bones. तो पोस्टीरियरली वो सैक्रम से कनेक्टेड है, यू कैन सी. ओके, नाम याद रखना है कॉक्सल बोन्स. एंड ईच ऑफ देम, ईच कॉक्सल बोन इज अ लार्ज इरेग्युलर शेप्ड वन, जिसके तीन पार्ट्स हैं. यू जस्ट हैव टू रिमेंबर द नेम्स. ओके, दे आर नेम्ड एज इलियम, ischium, pubis. So ilium is the upper part, ischium is the central part, pubis is the front part. ओके, ऐसे करके तीन अलग अलग बोन्स है. तो 3D व्यू में देखना कैसे दिखता है ना. सैक्रम इज ऑन द बैक साइड, तो ये कॉक्सल बोन्स कैसे दिखता है. एंड देन इफ यू कम टू द फ्रंट साइड इट अपीयर्स लाइक दिस. ये कैसा कैविटी बना देता है बीच में. गेटिंग इट? ओके, एंड देन जहां पे ये तीनों बोन्स फ्यूज्ड है, you can see there is a cavity. ये नाम हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, called acetabulum. This portion, यहाँ पर वो काइंड ऑफ अ डिप्रेशन है जहां पे फीमर का हेड गेट्स अटैच्ड. ओके, दैट इज द acetabulum. याद है अभी बताया था फीमर में, हाँ. है ना. तो acetabulum is the one which forms a ball and socket joint with the head of the femur. Okay, तो वो थाई बोन से कनेक्टेड है प्रॉपर्ली. ठीक है. देन अभी जैसे ये कॉक्सल बोन के तीन पार्ट मैंने बताया, इलियम, इस्चियम, प्यूबिस. तो लोअर एंड ऑफ बोथ द साइड्स इज कॉल्ड एज प्यूबिस. तो दोनों प्यूबिस इन द फ्रंट, ओके, मीडियली देयर इज अ कार्टिलेजिनस जॉइंट दैट कनेक्ट्स देम, जिसको बोलते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस. ठीक है, जस्ट प्रोनाउंस दीज नेम्स. पहले बोल एसेटाब्यूलम, Acetabulum, pubic symphysis. करेक्ट. ओके, प्यूबिक सिम्फाइसिस इन द फ्रंट. ठीक है, एंड प्यूबिस और इस्चियम दोनों मिलाकर एक काइंड ऑफ अ रिंग तैयार करते. देखना ये, ओके, ये दिख रहा है, एक कैविटी सा बन रहा है. दैट इज कॉल्ड एज द ऑब्चुरेटर फोरामेन. ओके, प्रोनाउंस कर, बोल. Obturator foramen. करेक्ट. ओके, तो मसल्स वगैरह
करने के लिए वो एक स्पेस या कैविटी बन जाते हैं। ठीक है, ये किससे बनता है? बाय द फ्यूजन ऑफ pubis and the ischium together. There is a ring like structure which is produced. ठीक है, so when you talk about the pelvic girdle, सबसे पहले याद रखना है बोन्स के नाम है coxal bones having three parts, that is ilium, ischium, pubis. Okay, जहां इन तीनों का फ्यूजन हो रहा है there is a cavity called acetabulum जिससे connected है head of the femur, and the pubis in the front will join by a cartilaginous joint called pubic symphysis, and pubis and ischium के together एक ring like formation हो जा रहा है which encloses a cavity. That cavity is known as obturator foramen. ये सारे keywords याद रखना, ठीक है? So now you understood कि सारे bones को लेकर एक टेबल बनाएंगे तो कैसे यूजफुल रहेगा, है ना? Because you'll be able to write the keywords. बाकी डिस्क्रिप्शन नहीं लिखना है, वो तो लर्न करना ही है, बट जस्ट फॉर अ काइंड ऑफ अ क्विक रिवीजन या एक वन लुक में अगर रिवाइज करना हो तो दैट विल बी अ गुड थिंग टू डू. तो यू मेक दैट टेबल. मैं काइंड ऑफ मैं असाइनमेंट ही डाल देता हूँ टू प्रिपेयर दैट एंड मेक इट, है ना? ओके, तो अंडरस्टूड द पेल्विक गर्डल अच्छे से? यस, इजी है, राइट? अभी when it comes to pelvic girdle, if you remember when we were discussing about the hyoid bone, तो तभी बताया था कि forensic investigation में many a times it happens कि murder cases या इस तरह का जो भी cases होते हैं, if the crime has been committed long time back and the body is recovered much later, so obviously the remaining parts of the body are decomposed and बाकी मिलता है only the skeleton. तो उससे इन्वेस्टिगेटर्स को पता करना होता है कि पहले तो जिसका जो विक्टिम है उसका आइडेंटिफिकेशन जरूरी है, तभी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ पाएगा. तो आइडेंटिफिकेशन के लिए इफ द बॉडी इज इन द फॉर्म ऑफ ओनली द स्केलेटन, तो सबसे पहले ये जरूरी हो जाता है कि स्केलेटन मेल का था या फीमेल का था, वो फाइंड आउट करना. फॉर दैट द पेल्विक गर्डल कम्स इनटू पिक्चर. ओके, बिकॉज पेल्विक गर्डल बाकी सारे बोन्स ऑलमोस्ट मेल फीमेल में सेम होते हैं. इट इज नॉट इजी टू आइडेंटिफाई, बट द डिफरेंस मेनली इज इन द पेल्विक गर्डल. ओके, सो एज यू कैन सी ओवर हियर कि पेल्विक गर्डल ऑफ द फीमेल्स, ये जो कैविटी है ना बीच में, दिस ब्रॉड कैविटी, बेसिन लाइक कैविटी, ये ध्यान से देखना कि इन एन एडल्ट ह्यूमन बीइंग between a male and a female, the cavity of the female is a larger and a broader one as compared to that of the males. Can you see the difference? yes. Okay, that's the reason, especially in a female, okay, so the hip portion hai, they are more broader as compared to that of the males. Males have a narrow hip. If you remember 10th में secondary sexual characters करके भी बताया था मैंने. So that was one of the points, है ना, कि in the males the hip region is a flat and narrow one, while in the females the hip portion is a broader one. And why it is necessary? Nature ने ऐसा क्यों बनाया? डिलीवरी के टाइम. Exactly, because females have to, yes, correct, females have to undergo something called parturition, child delivery, है ना, which happens through this portion, lower abdomen followed by passing through the vagina. So यहाँ पर ये cavity, it has to be broad so that the child delivery becomes smooth. And obviously males do not need any such thing. Okay, so for that the females have a broader and bigger pelvic girdle as compared to males. तो forensic cases में अगर कभी सिर्फ skeleton मिलता है तो pelvic girdle के observation से confirm करते हैं कि वो मेल का skeleton था या फीमेल का. Accordingly the investigation is proceeded. इसलिए अभी हम लोग बोन्स के हिसाब से पढ़ रहे तो दिस ऑल्सो बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. जैसे वहां पर हमने स्ट्रैंगुलेशन के बारे में बोला था, वैसे यहाँ पर ये याद रखना. ओके, सो क्लियर अबाउट दिस प्रॉपरली? एनी डाउट इन द स्केलेटन? नो. एनी डाउट इन द स्केलेटन? हमने एक्सियल एपेंडिकुलर दोनों कंप्लीट कर दिया. ओके, हाँ, ठीक है. So with that we come to the end of the skeletal system. Now time for some quick revision. Ready? हाँ. ठीक है. Okay, you can keep the video on for some time.
अगर स्क्रीन दिखेगा तो Okay, I will try. 1 minute. मैंने 2-3 अलग अलग टाइप के रिवीजन क्वेश्चंस रखे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग क्या करना है कि ऑल द बोन्स दैट वी हैव डिस्कस्ड, ठीक है, रैंडमली एक के बाद एक बोन का फोटो या डायग्राम आएगा, यू जस्ट आइडेंटिफाई विच बोन इट इज, चलेगा? ठीक है, यस, यू आर विजिबल नाउ, ओके। देख रहा, हाँ, सो रेडी टू आइडेंटिफाई, ट्राई कर, ठीक है, ओके। फर्स्ट वन, बोल। Sometimes you have to observe the labeling and then you can identify. नहीं, ह्यूमेरस नहीं है, ये थाइस का है। Now you have to tell the technical name. क्या था? वो इम्पोर्टेंट है ना, थाई बोन बोला वो करेक्ट है, बट उसका नाम क्या है? पटेला के ऊपर वाला क्या था? बुखार आता है तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फीवर। तो इसका नाम क्या हुआ? इट साउंड्स वेरी सिमिलर, फीमर। फीमर, हाँ फीमर। हाँ, ठीक है, ऐसे याद रखना है, ठीक है। हाँ। ये बोन का नाम है, यू कैन कॉल इट एज अ बुखार बोन इफ यू वांट, ओके, बट इसको फीमर बोलते हैं, ठीक है। गुड, बट गुड यू आइडेंटिफाइड। नेक्स्ट, ये बता। ये ह्यूमरस है। वेरी गुड, करेक्ट। नेक्स्ट, ये कौन सा है? हाँ, ये शोल्डर के पीछे वाला। क्या नाम है? यू कैन कॉल इट द समोसा बोन इफ यू वांट। हाँ, नाम क्या था? ट्रायंगुलर बोन है। स्कैप्यूला, स्कैपुला। ठीक है, अभी याद रहेगा ना, राइट। हाँ। नेक्स्ट, ये कौन है? हाँ, रिप। हाँ, रिप। हाँ, रिब्स, मुझे लिप्स सुनाई दिया। नहीं। याद है, रिब्स, करेक्ट। नेक्स्ट, हाँ, ये ब्रेस्ट बोन। करेक्ट, तो क्या नाम है उसका? क्या था? क्रेप्टम। हाँ, माय गॉड। स्नेहा विल गेट अ नोबेल प्राइज, है ना? समथिंग विद एस। हाँ, ऐसे उतना याद नहीं। हाँ। स्टर्नम। स्टर्नम। हाँ, ठीक मैंने है, स्क्रिप्टम कर दिया। माय गॉड, इतना कैसे अलग हो गया? ओके, रिमेम्बर स्टर्नम, ओके। नेक्स्ट, कौन सा वाला बोलूं? नीचे वाला? कोक। नीचे वाला, यस, दिस वन। कॉक्स। ये जो है ना मेन जो दिख रहा है 3 खिड़की वाला, वो बताओ। स्टेरम। नहीं, सैक्रम। सैक्रम। हाँ, हाँ। रिमेम्बर ये दोनों थोड़ा सिमिलर साउंड करते हैं, हाँ, स्टर्नम, ये सैक्रम, सैक्रम। ठीक है। डोंट इन्वेंट एनी हाइब्रिड बोन प्लीज। ओके, या। नेक्स्ट, ये क्या है? क्या है? एटलस। नहीं, एटलस में सेंट्रम ही नहीं है ना, सी द बिग हाँ सेंट्रम। हाँ हाँ। बोल। हम्म,
थर्ड बोन है शायद, हम्म नेक रीजन का थर्ड बोन है। थर्ड नहीं है, नेक रीजन या सर्वाइकल वर्टिब्रे का सेवेंथ बोन, ओके याद है? हाँ वर्टिब्रा प्रोमिनेंस, हाँ याद है? सेवेंथ सर्वाइकल वर्टिब्रा कॉल्ड एज वर्टिब्रा प्रोमिनेंस। ठीक है, या नेक्स्ट। आटे का गोला छोटा वाला। हाँ पटेला। ओके, और भी बोन्स है, ठीक है। ये कौन है? ये पैर है क्या? हाँ हाँ हाँ, पैर है। इसीलिए मैंने लेबलिंग हटा दिया। सो ये हाथों के पैर है, टार्सल, करेक्ट। मेटाटार्सल, हाँ फ्लैंजिल। हाँ 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 हाँ। बड़ा नाम बराबर याद रख गई, छोटा नाम में कंफ्यूजन हो रहा है। फैलेंजस। हाँ फैलेंज। ये फैंजलिन कौन आ गया बीच में? ओके, ये ठीक है। ट्राई टू आइडेंटिफाई। चल सूचर्स है इसमें, लेकिन ब्रेन नहीं है अभी। नहीं आते? नेक का कुछ है? Okay, I'll give you a hint. This is a part of the face. बिग बॉस। Correct. The हाँ bones of the cheeks. क्या नाम है उसके? वो नहीं यार। याद है? Zygomatic. याद है? हाँ जाइगोमेटिक, हाँ इसलिए Zygomatic. रख दिया है जाइगोमेटिक हाँ फोर्सली। वही। Next. हाँ ये कॉक्सिस। Correct. Very good. हाँ ये लोअर जॉ। तो क्या बोलते हैं उसको? नाम क्या है? एल से है। अब मुझे सुनना है तो क्या नाम बोलती है? बोल। मैल। हाँ, ऐसे इंस्टॉलमेंट में बोलेगी। पूरा नाम बोल। मैलिस। बोलो। मैंडिबल। मैंडिबल। ओके हाँ, है ना? तो ओके। ऊपर वाला मैन। मैक्सिला। मैक्सिला, मैक्सिला यार। ओके, लोअर जॉ इज मैंडिबल, अपर जॉ इज मैंडिबल। मैक्सिला। ठीक है, ओके। ये याद है? ऑलमोस्ट अ बटरफ्लाई शेप्ड बोन। ये डिप्रेशन इसमें बहुत सिग्निफिकेंट है। यूरोसिकल। नहीं नहीं, इतना बड़ा किधर है यार? हाँ ये हॉल्ड बोन नहीं, वो तो ऐसा था। हॉइल्ड बोन में ऐसा नहीं, वो तो एकदम रिंग जैसे। हाँ एकदम रिंग जैसा। हम्म हम्म, क्या आएगा ये? हाँ नोज। नहीं। नहीं। ओके, आई विल गिव यू अ हिंट। इससे ऐसा, इससे कनेक्टेड है पिट्यूटरी ग्लैंड। याद आया? हाँ ओ से है ना कुछ? नहीं, ये भी तो एस से है। एस फॉर स्नेहा। ऐसे नहीं याद आ रहा। इट इज कॉल्ड स्फिनॉइड बोन। ओके ठीक है, इसको बोलते हैं स्फिनॉइड बोन। ओके, नेक्स्ट। हाँ दिस यू नो नाउ।
हाँ, ईयर ऑसिकल्स, अरे तीनों के वो नाम बता। स्टेप्स। हाँ और बाकी दोनों के नाम क्या है? हम्म मेरे स्मॉलेस्ट वाला याद है। जिसको तूने स्टिप्यूला कर दिया था। हाँ। एंड बाकी दोनों का नाम? अ, ये हैमर जैसा क्या बोलते हैं आपने? मैलियस इनकस। ओके। ठीक हाँ है या हाँ, ये हॉल्ड बोन। करेक्ट। हाँ, इसमें वो जो क्रेनियम फिट होता तो कौन सा बोन है ये? है। वर्टिबल करके कुछ। थिंक क्रेनियम फिट होता है, बराबर बोला। So which one it is? Atlas, the first vertebra. याद है? एटलस, हाँ एटलस, है हाँ ना? अभी बोला था मैंने। हाँ उसमें ना इतना बड़ा वर्टिब्रल फोरामेन है, उससे याद रखना। हाँ ठीक है, ओके। सो ये रिवीजन हो गया। नाउ हाँ। अभी एक के बाद एक बोन्स के नाम आएंगे। यू हैव टू टेल मी इट इज लोकेटेड इन विच रीजन। ओके, जैसे अगर मैं बताऊंगा मैंडिबल, तो यू विल से लोअर जॉ। हाँ, ठीक है, कॉमन नाम बोला है ना। हाँ कॉमन नाम, रीजन, लोकेशन बताना। हाँ। ठीक है, ओके, ये बता। ये क्या लोकेशन? ये वर्टिबल कॉलम का सबसे लास्ट। तो क्या बोलेंगे, वन वर्ड में क्या बोलेंगे? वन वर्ड में लास्ट रीजन ऑफ वर्टिबल तो कॉलम। लास्ट मतलब कौन सा रीजन? जैसे ऊपर है तो नेक बोलते हैं, तो कॉक्सिक्स कहाँ पे हुआ? कॉक्सिक्स वेस्ट के उधर। नहीं, वेस्ट तो नहीं, साइड में उसके हो गया ना। पीछे पे। हाँ हाँ हाँ, टेल पोर्शन, टेल पोर्शन। टेल रीजन है ना। टेल नहीं है, बट टेल अगर होता तो वहां पे। ओके, हाँ, ये बताओ। मैक्सिला अपर जॉ। करेक्ट। हाँ, ह्यूमरस। हाँ, शोल्डर के नीचे वाला। सो यू विल से अपर आर्म। ओके, अपर आर्म। ठीक है, यस। हाँ हाँ, ये थाइस पे। यस करेक्ट। हाँ, मेटाटार्सल। हम्म मेटाटार्सल, इसको कैसे बोलूं? टार्सल के नीचे वाला। सो मेटाटार्सल्स विल बी द सोल। मैंने बताया ना, हील्स सोल, पहनते ओके हाँ हैं। सोल। हाँ, है ना, सोल। एक्सेस। एक्सिस वर्टिब्रा याद है? नहीं। सेकंड सर्वाइकल, एटलस एंड एक्सिस मिलके एक जॉइंट बनाते हैं ना, पाइवट जॉइंट। हाँ हाँ, ओके, ओके तो हाँ। ये सेकंड सर्वाइकल नेक रीजन। ओके, हम्म, नेक्स्ट। हाँ ये तेरा हाँ स्टिपुला बोल। स्टेप्स। ईयर के उधर। हाँ, ईयर you will say ऑसिकल्स में। ear ossicle, correct. हेयर। हॉइड किधर आता है? हॉइड किधर आता है, विच लोकेशन?
नेक पे, थ्रोट, थ्रोट, ओके हाँ। ओके, बिकॉज Trachea लैरिंग्स के के उधर ऊपर है ना, यस करेक्ट। ये बता। हाँ ये कार्पल्स, हाँ रिस्ट पे, करेक्ट, रिस्ट पोर्शन। ये बता। हाँ ये कमर के उधर, लंबर वर्टिब्रा, हाँ इट्स नॉट द कमर। नहीं नहीं देखिए यहाँ पे सैक्रम है। ये फिर चेस्ट रीजन में बैक साइड, चेस्ट रीजन में थोरैसिक हो गया, तो वो बीच वाला फिर, तो क्या बोलेंगे? इट इज अपर एब्डोमेन। क्या अपर एब्डोमेन, ओके, ऐसे याद रखना है। ओके, ये बता। अच्छा, ये सुन के तूने स्टेप्स का स्कैपुला, स्कैपुला कर दिया था ना? ओके, बोल। स्कैपुला क्या बोलेंगे? स्कैपुला, हैंड में, शोल्डर ब्लेड, हाँ ठीक है, शोल्डर ब्लेड बोलना है। ये किधर है? प्रोनाउंस कर इसको पहले। ऑक्सीपिटल, ऑक्सीपिटल, एक्सी नहीं है ना, नहीं ऑक्सी, सी का क, सी का सी, ओके हाँ ऑक्सीपिटल। इंग्लिश है, इंग्लिश कुछ नहीं ऑक्सीपिटल, कर सकते। ये हेड में, बैक ऑफ द हेड, बैक ऑफ द हेड, ओके। ये हाँ ये ब्रेस्ट बोन, करेक्ट, ब्रेस्ट ऑफ द चेस्ट बोन। ये हाँ ये क्लैप, ये जॉइंट्स में, क्लैविकल। हाँ तो ब्रेन के जब टीचर जॉइंट्स तेरा में भी तारीफ होता है, करते तो कॉलर ऊपर हो जाता है, हाँ ओके हाँ कॉलर, कॉलर फोन, ठीक तो है। जॉइंट्स वाला क्या था फिर, कौन सा जॉइंट? अब आपने बोला ना वो जॉइंट होता है, तीसरे ही था कुछ, किधर का जॉइंट? ये हाथ, वो टिबिया, ओके टिबिया विद द ह्यूमरस। ओके सॉरी सॉरी, वो क्लॉन करके कुछ तो था, अच्छा, वो प्रोसेस का कुछ नाम रहेगा, क्लॉन्डाइल, हाँ, हाँ वो अलग है। अरे बाप रे, किससे वो कंफ्यूज अलग कर है रही हाँ। है? ओके, ये बोल। आइए योर पटेला, फेवरेट। हाँ वो नी पोर्शन में, नी कैप, नी क्या, एंड सैक्रम, रीजन अगर पूछेंगे ये तो क्या बोलेंगे? हाँ कमर, कमर, कमर में कॉक्सल बोन्स है। ओके मतलब अभी मैं 4 बोन बैक को से, कमर में डाल दिया। सैक्रम इज लोअर एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन, हाँ ठीक है। ओके, अभी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस फॉर रिवीजन, ओके रेडी? ओके, कैसा लग रहा है? हाँ अभी रिवीजन अच्छा लग रहा हाँ, है ना? यस, बिकॉज उससे अच्छा रिकलेक्ट हो जाता है ना फिर। बोल, रीड द क्वेश्चन, टेल द आंसर। the lower end of dash articulates with talus, which which is one of the tarsal bones. टैलस, टैलस बोलते हैं उसको। Fibula, नो, टैलस tarsal, टार्सल बोन के साथ जो आर्टिकुलेट करता है वो फिबुला नहीं है। द अदर वन, व्हाट इज दैट? हाँ तो tibia, करेक्ट, ओके, ये बोल। uh, vertebral foramen of फोरामेन, all the foramen of all the vertebra. वर्टिब्रे। हाँ उधर कुछ आया है वर्टी उधर बा हेड कर का, दिया। आर कट हो गया, फॉर्म अ कंटिन्यूअस डैश कैनाल, बोल।
हाँ, form a continuous dash canal. न्यूरल. करेक्ट, पूरा न्यूरल कैनाल जिससे स्पाइनल कॉर्ड पास होता है ना. ओके, ये बता. Dash vertebra. In dash vertebra, the centrum is kidney shaped. करेक्ट. आंसर बता. Lumbar. लंबार. Lumbar, हाँ. लंबार वर्टेब्रा. ओके. नेक्स्ट. Sphenoid cavity is a part of the dash. Sphenoid cavity. Femur. नो, फर्स्ट ऑफ ऑल फ्यूमर नहीं है, फीमर है. Femur. आंसर कुछ अलग है यहाँ पे. ग्लेनॉइड कैविटी. Humerus. इट इज ह्यूमेरस. नहीं, इट इज स्कैपुला एक्चुअली. स्कैपुला के ग्लेनॉइड कैविटी में ह्यूमेरस का हेड फिट होता है. ओके, हाँ. ओके, या. The neural spine is straight line in the dash cervical vertebra. Cervical. Third. इट इज सेवेंथ. Okay. सर्वाइकल में 7 है ना, तो जो लास्ट वाला है उसमें न्यूरल स्पाइन स्ट्रेट है, उसके ऊपर वाले में बाइफिट है. ओके, हाँ. ओके, 7th. हाँ, the largest bone in the human body is the femur. करेक्ट. Dash suture joins two parietal bones of cranium. क्रेनियम के सूचर्स याद है. पैराइटल बोन्स मतलब कौन सा? पैराइटल मतलब ऊपर वाला ना, ऊपर के दोनों साइड्स के. हाँ, ऊपर तो के जो दोनों बीच में मांग भरा जाता है वो सूचर है. हाँ. तो which one it is? कोरोनल. सजाइटल. नॉर्मली लेडीज कैसे बोलते हैं, मांग सजाते हैं. सजाइटल. जस्ट अ वियर्ड वे टू रिमेम्बर, नथिंग एल्स. ठीक है. ओके, नेक्स्ट. Coxal bones are a part of the dash. Pelvic girdle. करेक्ट. हाँ. Pelvic girdle का पार्ट है coxal bones. Ilium, ischium, pubis. ओके, है ना, 2 coxal bones. हाँ, वो तीनों coxal bone के 3 पार्ट है. ओके, ये बता. that the dash are the smallest among the facial bones. Woman? नहीं, उससे भी छोटा है फेशियल बोन्स में. तो लैक्रिमल होगा. लैक्रिमल, करेक्ट. which are associated with the tears. Yes. Yes. Good. Rib pairs numbered 11 and 12 are termed as dash ribs. Okay, 11 and 12 वाला वो floating. Correct. And last one. Hypophyseal. Physeal नहीं रे, hypophyseal. Physeal fossa
is associated with the dash bone. The depression type. Sphenoid. करेक्ट, इसी में वो Hmm. पिट्यूटरी ग्लैंड लोकेटेड है ना. हाँ. Okay, so finally we have come to the end of one major part of the lesson, that is about skeletal system, the bones. अच्छी तरह समझा सारे bones. ठीक है, रिवाइज करते रहना, याद रह जाएगा. ओके, बिकॉज यू आर एबल टू आंसर ऑलमोस्ट ऑल विथ वेरी फ्यू कंफ्यूजन, एंड वो तो ऑब्वियस है, अभी अभी सीखा है ना. तो इसको प्रैक्टिस कर, हो जाएगा. तो नेक्स्ट सेशन में वी विल कंटिन्यू विथ मसल्स. वो थोड़ा सा उसका फिजियोलॉजी अलग है, वो देखेंगे. एंड जॉइंट्स विल बी इजी टू रिमेंबर दैट. ठीक है, तो ये लेसन अपना हो जाएगा फिर. राइट, ओके.